Okay. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Mulazim Hussain Bukhari. Today we are starting our fourth lecture. बहुत ही important and very difficult lecture because about psoriasis and spongiosis, it was very easy to identify the cells and the lesions, different lesions. Today we are starting with the interface dermatitis. Okay, before starting interface dermatitis, we have already covered different topics related to inflammatory diseases. And inshallah, at the end of this, we'll start third topic, sclerosing diseases. Inshallah, next Sunday, inshallah. Then other diseases. And after completing all these, up to going to fifth, we'll start benign lesion, adnexal lesion, and the benign lesions of the. आप देखो बच्चों, मैं जब आपको एक कल वाली स्लाइड शेयर की थी तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि जनाब ये क्या है। कुछ ना कुछ आप देखें उसके अंदर कुछ स्पिंडल सेल लियन है, क्या है, कोई निवस है, कोई मेलानोमा है। तो एक्चुअली बात ये होती है कि लर्न करने से, एक दूसरे से शेयर करने से आपकी पैथोलॉजी बेहतर होती है। नो डाउट डर्मेटोपैथोलॉजी जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट बाज़ का ऐसा होता है कि पैथोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा विजनरी होते हैं। तो उसमें हमने इन द एपिडर्मल चेंजेस we covered spongiotic dermatitis and different forms of the spongiotic dermatitis and the psoriasiform and the dermatitis, and today very difficult topic, that is the interface dermatitis. So before this starting this, anybody can comment on this? जी डॉक्टर मदिया आप बताएं। डॉक्टर आसिफ आपने नहीं बताना, पैथोलॉजी वालों ने नहीं बताना। जी बेटा शेयर करें, एनीबडी? इस पे कमेंट करें बेटा, ये क्या चीज़ लगाई है, व्हाट इज दिस स्लाइड? स्लाइड क्या शो कर रही है? अच्छा अच्छा, कमेंट्स में आ रहे हैं, चैट में आ रहे हैं। ओके, लिख दें और कहीं नहीं तो लिख दें यानी कि क्या आपको नज़र क्या आ रहा है स्लाइड के अंदर? देखें इसके अंदर है, एक तरफ मैंने ऊँट के पाँव दिखाए हैं, कैमल, कैमल्स के आपने रेगुलर पा दिखाए हैं, और उसके दो नेल्स नज़र आ रहे हैं, और उसकी जो दिस इज इंडिकेटिंग द रेटिरेजिस, और कैमल के अंदर वाली जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द सुप्रापेपिलरी रिजेस। तो दीज आर द रेगुलर रिजेस। जी बेटा, जी जी आवाज दें, जी जी बोले बोले बोले। बच्चों को टाइम दे दीजिएगा, आप थोड़ा सा स्टडी करें। गुड। ये एक्चुअली मैंने दिखाने की कोशिश की कि पिछला टॉपिक था हमने कवर किया था, दैट वाज द सोरेसिस। और सोरेसिस को याद करने के लिए उसके रेटिजेनेस एकेंथोसिस को याद करना के सर ने एक दिखाया था, एक ऊंट का पाँव, और उसके अंदर जो है उसके अंदर कैमल्स का। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द इंटरफेस dermatitis with perivascular pattern and different pattern. We'll discuss different diseases. Basically, this is not a condition but a group of the conditions. In all these conditions that I have written, we see usually the interface dermatitis. All these covered, including lichenoid drug eruptions, lichenoid actinic keratosis, benign lichenoid keratosis, solitary lichen planus, lupus, these acute versus graft diseases, and several other conditions. तो आज हमने इनको देखना है कि कैसे मिक्सअप होते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन इंटरफेस? इंटरफेस के अगर डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में कोई इन्फ्लेमेशन है, और यू कैन नॉट मार्क डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस के आपको
You cannot mark these things. So biopsy is very important. So it is the term used in dermatology to describe a specific pattern of the inflammation seen in skin biopsies, where the inflammatory infiltrate often is located in the junction between the epidermis and the dermis. और वो जैसे उस एरिया है, we cannot easily look that obscuring the damage area of this one. Or again, another feature is that this inflammation is associated with the characterized by the basal vacuolization and dyskeratosis. ये चार फीचर याद रखना कि इसके अंदर नंबर 1 डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के ऊपर एक इन्फ्लेमेशन होती है और डर्मो एपिडर्मल जंक्शन जो है वो ऑब्स्क्योर हो जाता है. देयर इज वैक्यूलाइजेशन ऑफ द बेसल सेल, बेसल वैक्यूलाइजेशन. Basal vacuolization can be seen in other diseases, in some of the diseases, but along with this keratosis, along with this dermoepidermal infiltrate, we can easily differentiate interface dermatitis from the other dermatitis. Different types of the dermatitis. Key feature, as I discussed, 4 very important features, and inshallah, I will try my best to show all these features in each and every slides. इसके बाद आप देखें कि इसकी जो ये लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट और ये बिनाइन होता है. बेशक अगर आपको कहीं पे सेल लग रहा है एटिपिकल तो लिम्फोसाइट रिएक्टिव होगा. अगर लिम्फोसाइट रिएक्टिव नहीं है और लिम्फोसाइट एपिडर्मिस की तरफ ऊपर जा रहा है तो फिर देयर इज समथिंग. और वो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो मिक्स नहीं होते मैक्रोफेजेस के साथ, अदर सेल के साथ. और बेजल डैमेज और वैकुलाइजेशन, पिगमेंटेशन इनकॉन्टिनेंस, इंटरफेस इन चेंज एंड लिचिनाइड रिएक्शंस इन बैंड लाइक रिएक्शन. इसकी हिस्टोलॉजिकल पैटर्न हमारे पैथोलॉजी में हम इसको 2 पैटर्न्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट कवर वैकुलर एंड अगर टाइम बचा तो मैं लिचिनाइड को भी करेंगे, मिसनाइड भी करेंगे. तो इसके बाद हाँ, इसको हम दोबारा बताएं आपको. वैकुलर मीन्स कि द कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंट वैकुलाइजेशन ऑफ द बेसल केराटिनोसाइट्स एंड फेयर लिम्फोसाइट्स. बैंड नहीं होता. लिचिनाइड का मतलब है बैंड लाइक, एक बेल्ट लाइक होती है, एक सड़क बन रही होती है. और लिचिनाइड जहां भी आपका फीचर है कंसीडर करें कि ये कोई बैंड ऑफ सेल है या कोई बैंड ऑफ फाइबर्स है या बैंड ऑफ other things. तो lichenoid feature a dense band-like infiltrate of the lymphocyte obscuring the dermoepidermal junction. वैकुलर में बाज का तो आपको प्रोमिनेंट उसके साथ डर्मोएपिडर्मल जंक्शंस नजर आता है, लेकिन सम टाइम देयर इज अ मिक्स्ड. और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे. वैकुलर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये 3 है. ये वाइवा में भी आता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आता है, और कुछ आगे चढ़ेंगे वो मिक्स होंगी. उसके अंदर मिक्स पैटर्न होता है, वैकुलर भी हो सकता है और उसके साथ आपका लिचिनाइड भी होता है. एरिथीमा मल्टीफॉर्म स्किन रिएक्शन ऑफन ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शंस, मेडिकेशन, प्रेजेंटेशन एज ए टारगेट लाइक लीजन्स. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक सिंड्रोम मैं आपको दिखाऊंगा. इन दोनों के दरमियान में एरिथीमा के मल्टीफॉर्म और स्टीवन जॉनसन के दौरान हम हिस्टोपैथोलॉजिकली तौर पे कैसे डिफरेंट करते हैं. एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज अक्सर हमारे हेमेटोलॉजी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद होती है. तो वी हैव टू डिफरेंट. तो दीज आर द 4 एग्जांपल्स ऑफ वैकुलर वेरिएंट ऑफ इस इंटरफेस डर्मेटाइटिस. इसको बस का पेरी आर्टीरियोलर भी कहते हैं, एक पुराना नाम था, लेकिन रिसेंटली इसको वैकुलर. इसके बाद जो लूपस की एग्जांपल्स हैं, लूपस एरिथ्रोमेटस. अच्छा, फिक्स रिएक्शन जो है ना, इसके अंदर ये मिक्स भी हो सकता है. और दोनों लूपस भी वैकुलर है. फिक्स डायरेक्ट रिएक्शन दोनों तरह का हो सकता है, वैकुलर भी हो सकता है और लिचिनाइड भी हो सकता है. डर्मेटाइटिस अगर क्यूटेनियस है तो दीज आर द 6 एग्जांपल: एरिथीमा मल्टीफॉर्म, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम,
ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, डिस्काइड लूपस जो स्किन को इन्वॉल्व करता है, फिक्स्ड ड्रग रिएक्शंस, और याद रखना फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन मिक्स भी हो सकता है, एंड डर्मामायोसाइटिस इफ इट इज कुटेनियस। क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द लिचिनाइड पैटर्न जो होते हैं, लेचन प्लेनस बड़ा कम, लेचन का मतलब होता है बैंड, प्लेनस का मतलब सीधा। एक कॉमन कंडीशन करेक्टराइज बाय फ्लैट टॉप पर्पल एची पेप्यूल, जो अक्सर आपके साथ होता है हिस्टोपैथोलॉजी। पिट्रियसिस लिचिनाइड भी हम पढ़े, पिट्रियसिस होता है लेयर की शक्ल में हो, और इसके बाद लिचन स्ट्राइएटस, लिचन निटाइटस, ये एग्जाम्पल्स हैं। और उसके साथ बाज का फिक्स ड्रग रिएक्शन भी, अरप्शन भी आ जाता है। और एक होता है ड्रग रिएक्शन फिक्स ड्रग रिएक्शन, और एक होता है लिचिनाइड ड्रग रिएक्शन। होते दोनों ड्रग की वजह से, लेकिन पैटर्न डिफरेंट होता है, वो हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। तो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेस डर्मेटाइटिस, वैकुलर एंड द लिचिनाइड। अब सबसे पहले हम मल्टीफॉर्म एरिथीमा मल्टीफॉर्म और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि यूजुअली हर्पीस में, वायरल इन्फेक्शन में, अब तो देखा गया कोविड में भी दे आर and there are literature showing that in COVID there was also erythema multiforme interface dermatitis. दो चार केसेस बड़ी रिपोर्ट हुए, that was due to COVID, and mycoplasma infection and different other medication can show the erythema multiforme. Erythema multiforme shows a pattern of keratinocytes damage. अब इसको सिविट बॉडी भी बाज़ औक़ात कहते हैं, लेकिन उसको हम डैमेज्ड केराटिनोसाइट्स होता है, इसको पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए केराटिनोसाइट्स की अगर साइटोप्लाज्म में होता है, वो यूसिनोफिलिक होता है, पिंक कलर का होता है, और उसका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट 1/3 के करीब होता है। लेकिन जब ये डैमेज हो जाता है तो बाज़ का वो पिक्नोटिक न्यूक्लियस हो जाता है, या बाज़ का न्यूक्लियस बिल्कुल और वो एक ईओसिनोफिलिक बॉडी बन जाती है। तो ईओसिनोफिलिक बॉडी आपको डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे मिले तो वो डैमेज केराटिनोसाइट्स होते हैं। स्पॉन्जियोटिक डर्मेटाइटिस में हमने देखा था केराटिनोसाइट्स थे, लेकिन वो एपिडर्मिस के अंदर हमें नजर आ रहे थे। स्पॉन्जियोटिक डर्मेटाइटिस के हमें एग्जांपल नजर आ रहे हैं। अब ये है कि हम दोनों के अंदर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि shows pattern of keratinocytes and inflammation with focus on individual cell changes and a blister formation rather than the larger scales of the epidermal separation. Clinically important ज़्यादा होता है as compared to histopathology. This helps. ये जो clinical correlation होती है dermatologist की, ये हमें बताती है कि अगर तो large scale पे epidermal separation है, तो वो तो toxic epidermal necrolysis है, और focal है, फोकल सेपरेशन है, तो देन इट इज EM। एरिथीमा मल्टीफॉर्म, इसके अंदर हम मैं इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगली स्लाइड के अंदर मैं दिखाऊंगा। एपोप्टोटिक बॉडीज केराटिनोसाइट्स विद इन द अबव एंड द बेजल लेयर इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल सेल आर फुल थिकनेस। एक ग्रुप ऑफ केराटिनोसाइट्स होते हैं या सिंगल सेल होते हैं। इसके बाद रैक्ट सब एपिथेलिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रैक्ट जैसे एक आप एक जक्सा पजल बनाते हैं, जक्सा पजल बनी होती है, तो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस इज मेकिंग ए जक्सा पजल वेयर द केराटिनोसाइट्स फॉर्म द रूफ ऑफ द एपी सब एपिडर्मल वेजिकल। पास का तो वेजिकल भी बन जाता है, और ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि बुल्ला डिजीज के अंदर। लेकिन बुलेट डिजीज के अंदर दूसरे चेंजेस नहीं होते, जो एक इन्फ्लेमेशन होती है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, और बेजल वैक्यूलाइजेशन होती है। और बाज़ का आपके जो सेल, आपके जो वो जो हैं एक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके गिर्द भी आपको यू कैन सी द इन्फ्लेमेशन एंड माइल्ड मॉडरेट लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट, ऑब्स्क्योर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट यूजुअली। और हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन क्लिनिकली तौर पे हम देखते हैं कि सेपरेशन किस। अब ये देखें, एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर
स्ट्रेटम कॉर्नियम से शुरू करते हैं। ये बॉस्केट लाइक पिक्चर है, एक 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 लेयर्स की तरह बॉस्केट वेवी अपेयरेंस केराटिन लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम है। अच्छा, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर देखें, उसके बाद देन वी स्टार्ट द ग्रेनुलोसम, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, वेरी प्रोमिनेंट। और उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर इओसिनोफिलिक बॉडीज नजर आ रही हैं, ये डैमेज्ड केराटिनोसाइट्स हैं। और डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस देखें, एक इन्फिल्ट्रेट है, और ये इन्फिल्ट्रेट मोस्टली जो है मैक्रोफेजेस और लिफो सॉरी प्रीडोमिनेंटली ये जो होता है ये उसके आपका लिम्फोसाइट से होते हैं। और आपके चौथा फीचर देखें, बेजल वैकुलाइजेशन, बेजल वैक। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे डर्मिस के अंदर वेसल्स के अंदर देखें, ये वाला मैं इसको आपको ये शो करके दिखाता हूँ। इसको अब इसको देखें, ये पेरीवास्कुलर इन्फिल्ट्रेट। इसके बाद है ये केराटिनो डैमेज्ड केराटिनोसाइट्स। ये क्या है? डैमेज्ड केराटिनोसाइट्स। ये इंडिविजुअल सेल है। और जैसे मैंने कहा था ग्रुप ऑफ सेल भी होता है, ये देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये केराटिनोसाइट्स। और ये बेटा देखें कि स्ट्रेटम कॉर्नियम को मैंने किया है, ये देखें सॉरी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम को, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और ये देखें कि इसके बाद ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं उसके साथ। इसके बाद ये उसकी इसका इसको अब कैसे रिमूव करना है? ये कैसे? सॉरी, मैं देखता हूँ इसको। सेल तो बन गया लेकिन एनीहो। अच्छा, ये अब रिमूव नहीं हो रहा। हाउ टू? चले, स्पष्ट किया इसको। अ, इसके बाद आप ये देखें कि उसके साथ जो एमी है वो देखें कि ये आपको ब्लिस्टर से नज़र आ रहे हैं, ये ब्लिस्टर से नज़र आ रहे हैं, ब्लिस्टरिंग नज़र आ रही है। और मैं इसको अनशेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ, हो सकता है कि ये, एक मिनट आप इंतज़ार करें दोबारा। ये मैंने दोबारा शेयर किया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एरिथीमा मल्टीफॉर्म को हम पढ़ रहे थे, और एरिथीमा मल्टीफॉर्म के हमने डिफरेंट, ये उसकी हिस्टोपैथोलॉजी मैंने बताई थी। और उसके बाद ये उसका जो नीचे और ये उसकी क्लिनिकल पिक्चर्स, ये बुला भी हो सकता है, ये आपका डिफरेंट हेमरेज आ सकती है इसके अंदर, और ये स्केलिंग हो सकती है। ये अब इसके अंदर देखें कि ये उसी की पिक्चर है। ऑलमोस्ट रेटी रीजेस ऑलमोस्ट लॉस हो गए हैं। और डर्मिस में देखें कि कोलेजन्स जो है वो डिफरेंट, वो सेपरेशन हुई हुई है। और उसके बाद लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट है, और ये केराटिनोसाइट्स, और बड़े बड़े वैकुलाइजेशन हैं। ये देखिए, ये वैकुलाइजेशन, ये जो है ये वैक्यूल्स पड़ा है, सॉरी ये वैक्यूल पड़ा है। और ये जो इओसिनोफिलिक हैं, ये केराटिनोसाइट्स हैं। तो दिस वाज अबाउट द
स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ तेरा सेपरेशन ऑफ द रिएक्शंस involve both mucosa epidermis. By definition, Stevens-Johnson syndrome affects 10% of the total body surface area and toxic epidermal necrolysis 30% of the body surface area, leaving an intermediate category between the two ends of the spectrum. Both Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal syndrome are almost invariably triggered by the adverse medications. और माइक्रोस्कोपिकली ऑल दीज एंटिटीज शो सिमिलर फीचर्स जो हम पहले ऑलमोस्ट डिस्कस करते होते हैं, एक्सेप्ट कि हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम टॉक्सिक सिंड्रोम इज मोर क्लिनिकली एज कम्पेयर, लेकिन ये थोड़ा सा कंडीशन उससे डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मेडिकल। तो ये स्फीयर आप देख रहे हैं, वाइड स्प्रेड epidermal detachment and exposed dermis affecting more than 30% of the total body surface area, consistent with diagnosis of total sclerosis in upper limb. अब ये देखें कि उससे थोड़ा सा ये देखें उसके अंदर अगर देखें पहली पिक्चर मैंने दिखाई थी, दैट वाज नॉट वाइड स्प्रेड सेपरेशन, और इसके अंदर डर्मो एपिडर्मल जंक्शन को देखें वाइड स्प्रेड है, ऑलमोस्ट देखें तो एपिडर्मिस मर चुकी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसकी केराटिनोसाइट्स जो है ना वो डेड हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है उसकी ऑलमोस्ट। दिस इज अ वाइड स्प्रेड सेपरेशन ऑफ दैट। और नीचे देखें कि डायलेटेड वेसल्स हैं, और ये खास तौर पे फिर हिस्टोपैथोलॉजी में आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये एरिथीमा है या ए टॉक्सिक सिंड्रोम है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अक्सर हमारे पास भी आता है, आपके पास भी आता है, और इसकी बात का ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 0 से लेके हम ग्रेड 4 तक जाते हैं, और यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ या किसी ट्रांसप्लांटेशन के साथ आपको ज़्यादातर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज नज़र आती है। इसकी भी पिक्चर ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिकली वही होती है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि सेल की नेक्रोसिस जो होती है, इंडिविजुअल सेल की नेक्रोसिस ज़्यादा होती है, और उसके साथ मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट इन द अपर डर्मिस डीपर नहीं होते। अब यूजुअली हमारे पास जो बायोप्सी भेजी जाती है, स्कैन वाले भेजते हैं हमारे पास, टाइप 2 की होती है, और उसके साथ हम जो अगर ग्रेडिंग जरी इंपॉर्टेंट होती है, जब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीजेस के, तो ऑलमोस्ट ग्रेड 0 नॉर्मल स्किन, ग्रेड 1 acute graft versus host disease is characterized by the basal vacuolization with the superficial perivascular lymphocytes, superficial, not the deep, lymphocyte infiltrate without डिस्केराटोसिस, ये ग्रेड 1 है। अगर इसके साथ डिस्केराटोसिस आ जाती है तो ग्रेड 2 हो जाता है। अगर ग्रेड 1 के साथ होस्ट डिजीज बट विद केराटिनोसाइट एंड स्टिल नेक्रोसिस भी आ जाती है। ग्रेड 3 के साथ थोड़ा सा एपिडर्मिस ज़्यादा उसके अंदर क्लेफ्ट सी बन जाती है, टूट फूट जाती है। एंड ग्रेड 4 इज ग्रेट विद कंप्लीट लॉस ऑफ एपिडर्मिस। इन जनरलाइज मोस्ट ऑफ द एक्यूट वर्स हमारे पास अक्सर ग्रेड 2 की आती है। एक क्रोनिक फॉर्म भी आती है, क्रोनिक फॉर्म में ज़्यादातर स्क्लेरोडर्मिया और मॉर्फिया की तरह होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस स्क्लेरोडर्मा एंड द ऑलमोस्ट उसके साथ ये इसकी क्लिनिकल पिक्चर होती है अक्यूट फॉर्म की, और अक्यूट वर्सेस होस्ट डिसीज। और इसके राइट साइड पे मैंने दिखाई है, ये ज़रा हेमरेजिक कम है, ये क्रोनिक स्टेज में आ जाती है। अब ये ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज के नंबर 1 आप देखें कि इसके अंदर हमें डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के दरमियान एक इनफिल्ट्रेट नजर आ रहा है, और सुपरफिशियल डीप नहीं है, और नीचे वाली वेसल को देखें तो ज्यादातर डीप वेसल्स में नहीं आ रहा। इफ और थोड़ा थोड़ा कहीं पे हमें इनकॉन्टिनेंस भी है, लेकिन इसके साथ सेकेंड क्लेफ्ट नहीं बनी हुई और एपिडर्मिस इंटैक्ट है। ग्रेड 3 एंड 4 एक्सक्लूड हो गई। ग्रेड 1 एक्सक्लूड इसलिए करते हैं कि इसके अंदर आप देखें कि ये केराटिनोसाइट डिस्ट्रक्शन हो रही है, और बेजल ये केराटिनोसाइट डिस्ट्रक्शन
तो when there is a keratinocyte destruction, dermoepidermal junction infiltrate, basal vacuolization, and perisuperficial infiltrate and superficial peri। और बार का तो आप नर्व के इर्द गिर्द भी आपको इन्फिल्ट्रेट नजर आता है, ये और बाज का जो। अच्छा, अब जो क्रोनिक स्टेज को आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो कोलेजनाइजेशन होती है ये ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स खत्म हो जाते हैं। ये एक और पिक्चर है, ये अगर इसको कोई डिस्क्राइब कर दे तो मुझे एहसास होगा कि मैं कुछ आपको बताने में कामयाब होगा। एनीबॉडी इसको डिस्क्राइब कर दे, एनीबॉडी प्लीज डिस्क्राइब इट। Sir, this is the skin biopsy revealing शेयर। hyperkeratosis, keratosis, prominent perineal light, pigmentosis, basal nerve localization, and the superficial derm is there is collagenous tissue and pigment incontinence and deep inflammatory cell involvement. Also, there is perivascular. कुछ और भी नजर आ रहा है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द मैक्रोफेज नजर आ रहे हैं कुछ, थोड़ा बता। ये जो मेलानिन इनकॉन्टिनेंस होती है उसको मैक्रोफेज ले लेते हैं। और इसके बाद आप देखें कि कोलेजनाइजेशन हो रही है, आप ये देखें ना, कोलेजनाइजेशन हो रही है, देखें ये। तो दिस इज शोइंग द क्रोनिक, ये क्रोनिक की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमें अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजुअली इट इज ए सिस्टमेटिक, ये ऑल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, स्पेशली किडनीज को भी। और इसकी ग्रेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पैथोलॉजिस्ट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट टुडे वी विल डिस्कस ऑन द कुटेनियस एली, डिस्कॉयड लूपस, क्रोनिक लूपस, अक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक डिस्कॉयड लूपस अक्सर हिस्टोपैथोलॉजी में आप हमें भेजा करते हैं और स्पेशली वुमेन्स होती हैं। और वन ऑफ आवर माय colleague professor was suffering with this disease, SLE, and anyhow, chronic discoid lupus is a relatively common condition with a distinct preference for women presenting as a delimited erytheromatous and hyperkeratotic atrophic patches and the plaques on the face, neck। ये सारी आप हमें लिख के बेसिकली इसको हम एक, इसके जो डीएनए डैमेज होता है इसका, इट इज इम्यून मीडिएटेड डिजीज एंड बाय एंटीबॉडी अगेंस्ट द होमोलोगस डीएनए हेटेरोलोगस टीम है। ये डिफरेंशिएट एसएलई में करते हैं एज कंपेयर टू दूसरी डिजीज के अंदर, क्योंकि होती तो बहुत सारी ऑलमोस्ट एक जैसी बटरफ्लाई, और किसी और जगह में फीवर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है, सनलाइट सेंसिटिव फोटो सेंसिटिविटी भी किसी और डिजीजेज में हो सकती है। लेकिन वी हैव टू, आप लोग ही बल्कि इसका डीएनए टेस्ट करा के हमें इसको एंटी डीएनए टेस्ट करते, हम आपको हिस्टोलॉजिकल तौर पर बताते हैं। बाज़ का तो ओवरलैप होता है अक्यूट सबक्यूट में, वही बेजल वैक्यूलाइजेशन, इंटरफेस changes, scattered dyskeratotic cell associated with the superficial or the superficial or deep perivascular lymphocyte infiltrate with increased dermal mucin. In the discoid form, there is often follicular plugging, epidermal atrophy, a thickened basement membrane, and periadnexal। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट द eosinophils अगर आ जाए तो इसका मतलब है दे डिस्कॉइड लूपस नहीं है। प्रेजेंस ऑफ आर्गूज अगेंस्ट द डायग्नोसिस। एक ट्यूमेड लूपस एरिथ्रोमेटस भी होता है, इज ए फोटोसेंसिटिव फॉर्म ऑफ ए क्रोनिक एरिथ्रोमेटस without interface changes and may represent the same process that has been termed Chesser lymphocytic infiltration of the skin, clinically characterized by smooth erythromatous and edematous plaques, often on the sun exposed surface, unlike, ये उसकी एक वेरिएंट है, लेकिन हम इसको पैथोलॉजी में क्रॉनिक सिमिलर पिक्चर के साथ। और क्लस्टर ऑफ CD132 पॉजिटिव प्लाज्मा साइट्स भी उससे होते हैं, डेंड्रोसाइट्स भी हो सकते होते हैं लिपस। क्लिनिकली अनइन्वॉल्व्ड एरिया शोज डिपोजिशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी हम डिटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी इसके साथ की जाती है। ये एक पिक्चर है,
स्ट्रेटम कॉर्नियम से देखें, और प्लगिंग भी आपको हो रही है। इसके बाद आप केराटिनोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखें कि इसके अंदर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम इंटैक्ट है इन, और उसके नीचे देखें कि आपके साथ कुछ कहीं पे ये जो इयोसिनोफिलिक मटेरियल है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं, ये वाले आपको नज़र जो आ रहे हैं, बट दे आर नॉट इयोसिनोफिलिक। तो ये पिक्चर अक्सर विद हिस्ट्री के साथ इसको हम कहते हैं। Lesions of the chronic disc showing the hyperkeratosis, interface changes, hydropic degeneration, ये ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आ रही है, along the basal layers of this, ये उसकी पिक्चर है। Cutaneous dermatomyositis is a very rare condition. Microscopically, the skin changes may those of the specific chronic dermatitis. उसके साथ मसल वीकनेस होती है, लेकिन मसल की डिजेनरेशन बड़ी कम होती है। अगर मसल्स के साथ आए तो फिर उसकी कंडीशन एडवांस होती है। देयर इज स्पॉन्स पेरिवास्कुलर लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट विद मार्क्ड इंक्रीज इन द डर्मल म्यूसिन। डर्मल म्यूसिन आपको बाज़ दूसरी कंडीशन में भी मिल जाती है, लेकिन उसके साथ अगर पेरिवास्कुलर इन्फिल्ट्रेट नहीं है तो देन इट इज ए डर्मेटोमायोसाइटिस। और इसके ये एक खास पिक्चर्स है इसकी क्या। dermatomyositis is a condition that affects the muscle, skin, blood vessels, and it's both inflammatory and degenerative. Inflammatory myopathies are characterized by disorders that causes the body's immune system to target the healthy muscles infiltrate. ये बड़ी रेयर सी मुझे पिक्चर मिली है, ये म्यूसिन मैंने अल्सियन ब्लू से इसको स्टेन किया हुआ है। ये इसकी पिक्चर है, देखें इसकी क्रॉनिक मायोसाइटिस के अंदर आप देखें थोड़ा थोड़ा, आपको मैंने कहा था पेरीवास्कुलर लिम्फोसाइट नहीं होगी, कहीं कहीं पे डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस के ऊपर म्यूसिन के साथ ये लिम्फोसाइट भी मिल रहे हैं। तो दिस वाज म्यूसिन के साथ स्टेन करने के साथ। मेरा ख्याल है कि आई थिंक के वैकुलर को ही इतना काफ़ी है, और इसको हम जो इंटरफेस है और लिचन प्लैनस को अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे। तो क्या ख्याल है? If any questions? If any question, if any suggestions? No, sir, very informative picture, sir. Because if I start lichen planus and other condition, that will take another 40 minutes. I do not think it will be burden for the learning, because usually the